الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقائے نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں آنسوؤں سے پریشان بہت ہیں، دنیا میں آنسوؤں سے پریشان بہت ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے مگر جان بہت ہے، اور کب رونا ہے کب ہنسنا ہے اصغر سے یہ پوچھو۔ 6 ماہ کے علی اصغر بھی کربلا کے میدان میں تھے، امام حسین کے ساتھ تھے اور شہید بھی ہوئے تھے۔ شاعر نے اس پس منظر کو بیان کیا ہے، کب رونا ہے کب ہنسنا ہے اصغر سے یہ پوچھو، کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے، کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بھی کرب و بلا کی تاریخ، جب بھی کرب و بلا کی اوراق کو پلٹتے ہیں تو یقیناً 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی بھی یادیں آتی ہے، اور انسان اس 6 ماہ کے علی اصغر کو بھول نہیں سکتے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا علی اصغر خیمے میں ہے، ساتھ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی گود میں ہے، کبھی جھولے میں ہے، زمین پہ نہیں تھے، زمین پہ علی اصغر کو نہیں لٹایا گیا تھا، کبھی سیدہ زینب کی گود میں، کبھی امام حسین کی گود میں، کبھی زین العابدین کی گود میں، کبھی ام رباب کی گود میں، کبھی شہر بانو کی گود میں۔ جب سارے تھک جاتے تو جھولے میں رکھ دیا جاتا، جھولے میں رکھے جاتے تھے علی اصغر کو۔ آخر کیوں جھولے میں رکھا گیا؟ علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں سلایا گیا؟ کیونکہ بہت بڑا اندیشہ تھا، بہت بڑا اندیشہ تھا کہ اگر علی اصغر کو زمین پہ سلایا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیر کے رگڑنے کی وجہ سے نیا آب زمزم پیدا ہو جائے، نیا آب زمزم پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کے دادا، ان کے سگے پردادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے آب زمزم پیدا ہوا تھا، تو اسی لیے علی اصغر کو گود میں رکھا گیا، جھولے میں رکھا گیا کہ کہیں دوسرا آب زمزم نہ پیدا ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، علی اصغر کی داستانیں بہت ہے، وہ کرب و بلا کے میدان میں شہید بھی ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ حضرت امام حسین کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں، جہاں ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اپنے اپنے طور پہ انسان امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ جدھر نظر اٹھائیں محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی یاد مناتے ہیں لوگ۔ اسی لیے کہا گیا کہ کربلا پڑھنا بھی ضروری ہے، کربلا جاننا بھی ضروری ہے، کربلا سننا بھی ضروری ہے، اور اللہ اگر توفیق دے تو کربلا جانا بھی ضروری ہے۔ کربلا خوب سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنی بیٹیوں کو سنائیں، اپنے بہو کو سنائیں، اپنے بیٹے کو سنائیں۔ آپ کہیں گے عالم صاحب سن کے کیا ہوگا؟ سن کے کیا ہوگا؟ سنا کے کیا ہوگا؟ یہ شہباز امین آپ کو ایک میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہے،
जब कोई बाप अगर करबला की दास्तान को सुनेंगे तो हज़रत इमाम हुसैन की तरह अपनी औलादों को राह हक में शहीद करने का जज्बा उनके अंदर पैदा होगा। अगर कोई बेटा अगर करबला की दास्तान को सुनेंगे तो अली अकबर की किरदार अपने अंदर अपनाएंगे। अगर कोई बेटी करबला के दास्तान को सुनेंगे तो सैयदा ज़ैनब की किरदार अपने अंदर अपनाएंगी। अगर कोई बहू करबला के दास्तान को सुनेंगे तो शहरबानो की किरदार अपने अंदर अपनाएंगी। अगर कोई बेटा करबला की दास्तान को सुनेंगे तो अली अकबर की दास्तान को, अली अकबर की सीरत को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चा करबला की दास्तान को सुनेंगे तो हज़रत अली असगर की किरदार को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए करबला सुनना भी ज़रूरी है, करबला पढ़ना भी ज़रूरी है और करबला सुनाना भी ज़रूरी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूँ, आइए करबला के मैदान में बहुत सारे अंसार, बहुत सारे उन्वान, बहुत सारे अवान व अंसार शहीद हो चुके थे। हज़रत कासिम भी उन्हीं में से एक हैं। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन के साहबजादे हैं, इमाम हसन के बेटे हैं। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चचा जान हज़रत इमाम हुसैन से करबला में जाने की इजाज़त मांगते हैं। अर्ज़ करते हैं, चचा जान आप मुझे इजाज़त दें, मैं भी तलवार लेकर के करबला के मैदान में जाना चाहता हूँ। और उस यजीदिये को जिन्होंने आपको धोखा देकर के कूफे में बुलाया, जिन्होंने आपके साथ दगा किया, मैं उनको तलवारों से तह तक पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन कुर्बान जाएं, इमाम हुसैन अर्ज़ करते, भतीजा कासिम मैं तुम्हें करबला में जाने की इजाज़त नहीं देता, मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि तुम हमारे बड़े भाई के निशानी हो। मैं तुम्हें करबला के मैदान में मिटता हुआ देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें खाको खून में जाने की इजाज़त नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये बात हज़रत कासिम सुनते हैं आपके आंखों में आंसू आ जाता है, आप रोने लगते हैं, आप भीगी आंखों में भीगी पलकों से सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए, कौन सी तदबीर अपनाई जाए कि चचा जान से इजाज़त ली जाए कि मैं भी करबला के मैदान में जाऊं और मैं अपने तन को इमाम हुसैन के कदमों पे रखकर कुर्बान करूं। लेकिन चचा जान की तरफ से इजाज़त नहीं है। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने वालिद मोहतरम की एक वसीयत याद आती है। हज़रत इमाम हसन की एक वसीयत याद आती है हज़रत कासिम को, और वो वसीयत ये थी कि हज़रत इमाम हसन ने अपने बेटे हज़रत कासिम के बाजू पे एक तावीज़ बांधा था और तावीज़ बांधते वक्त कहा था, बेटा जब कोई मुश्किल सामने आ जाए, जब कोई संकट सामने आ जाए, जब रंजो अलम चारों तरफ से घेर ले, जब कोई रास्ता न निकल आए, तो उस वक्त इस तावीज़ को खोलना और देखना, तुम्हारी परेशानियाँ आसान हो जाएंगी, तुम्हारी परेशानियाँ आसान हो जाएंगी। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद की उस वसीयत पर अमल करते हैं और तावीज़ को खोलते हैं। तावीज़ को खोलने के बाद क्या देखते हैं, उसमें लिखा हुआ था, उनके वालिद साहब वसीयत किए थे कि मेरे बेटा कासिम, जब तुम अपने चचा जान हज़रत इमाम हुसैन को करबला में जाते हुए देखना, करबला में शहीद होते देखना, तो तुम भी अपनी कुर्बानी करबला के मैदान में पेश करना, तुम भी अपनी जान चचा जान के खातिर कुर्बानी, अपनी जान को करबला के मैदान में पेश करके जामे शहादत नोश करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वसीयत को देखते हैं, इस वसीयतनामा को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद दिल ही दिल में सोचते हैं और अर्ज़ करते हैं, इससे बड़ा मुश्किल वक्त अब कब आ सकता है, इससे बड़ा परेशानी का वक्त कब होगा, अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा मामला आ नहीं सकता है। लिहाजा वक्त यही है कि अभी चचा जान से इजाज़त दिया जाए, और उसमें लिखा हुआ था तुम्हारे चचा जान तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन किसी तरीके से भी तुम अपने चचा जान से इजाज़त लेना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत कासिम आखिरकार इजाज़त लेते हैं। लेने के बाद मैदान कारोसास में जाते हैं और जाने के बाद जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं और नोश फरमा लेते हैं। हज़रत इमाम हसन ने फरमाया था कि जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान की कुर्बानी पेश करेगा, ये शहादत का दरवाज़ा होगा, ये शहादत का दरवाज़ा होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत कासिम अपने वालिद की इस वसीयत पर अमल करते हुए करबला के मैदान में जाते हैं और जाने के बाद जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से एक बाद दिगर करबला के मैदान
मैदान में एक के बाद दीगर आते जा रहे हैं, जामे शहादत नोश करते जा रहे हैं और यजीदियों को अपनी तलवारों से तहतेक तक पहुंचा रहे हैं। वक्त गुजरता जाता है, सब रुखसत हो गए, सब रुखसत हो गए। हजरत हुर भी आज़ाद हो गए, हजरत कासिम भी शहीद हो गए, सब संगतें छोड़ रहे हैं। इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बानी दे दे करके जानिसारा ने हुसैन की लाशें चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। अब अली अकबर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, बाबा जान आप मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं भी करबला में जाना चाहता हूँ, आप हमें भी इजाज़त दीजिए। कुर्बान जाए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली अकबर को इजाज़त दे दी गई। हज़रत अली अकबर करबला के मैदान में जाते हैं, जाने के बाद तलवार इस तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से चलाते हैं कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को तह तक पहुँचा रहे हैं, काटते चले जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली अकबर ने करबला के मैदान में बहादुरी के वो जौहर दिखाए, शायद तारीख में दोबारा दिखने को मिले, शायद तारीख में दोबारा देखने को मिले, मुमकिन नहीं। थोड़ी देर के बाद खेमे से आवाज़ आती है, बाबा जान। ये जो ही इस आवाज़ को सैयदा ज़ैनब सुनते हैं, अर्ज़ करते हैं, भाई हुसैन देखो मैदान से आवाज़ आ रही है। इमाम हुसैन खेमे से निकलते हैं, क्या देखते हैं कि अली अकबर के सीनों को तीरों से पैबस्त हो चुका है, अली अकबर के सीनों में तीर है। हजरत इमाम हुसैन जाते हैं, हजरत इमाम हुसैन जो अली अकबर के पास जाते हैं, गोद में उठाते हैं, उठाने के बाद अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा जान तीर को बाहर निकाले, बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ हो रही है, तीर को बाहर निकालें, फिर से मैं यजीदियों से लड़ना चाहता हूँ, फिर से मैं इन यजीदियों से लड़ना चाहता हूँ, आप तीर को बाहर निकालें। इमाम हुसैन गोद में लेते हैं, गोद में लेने के बाद उनके हजरत अली अकबर के तीर को बाहर निकालते हैं। जैसे ही अली अकबर के तीर को बाहर निकालते हैं, हजरत अली अकबर का खून का फव्वारा निकलना शुरू हो जाता है और खून अली अकबर में इमाम हुसैन भीग जाते हैं, पूरा जिस्म पूरा कपड़ा खून आलूद हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इब्ने अशाकिर लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन खेमे में थे और खेमे से अली अकबर की आवाज़ को सुनकर मैदान में जा रहे थे, याद रखें तारीखी बात बता रहा हूँ, उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र 56 बरस की थी, 56 साल की थी इमाम हुसैन की उम्र, 56 ईयर थी। हजरत इमाम हुसैन जब जाते हैं करबला के मैदान में, तो आपके सर और दाढ़ी के बाल पूरे स्याह थे, पूरे काले थे, एक बाल भी सफ़ेद न हुए थे। सैयदा ज़ैनब बयान करती है कि जब भाई हुसैन अली अकबर को लेकर के खेमे में आए तो सर और दाढ़ी के बाल एक भी स्याह न थे, बल्कि सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने सामने उस मंजर को देखें, कितना मुश्किल वक्त था, कितनी मुसीबतों का सामना इमाम हुसैन ने किया, आज हम तक इस्लाम पहुंचा। अगर इमाम हुसैन इतनी मुसीबतों का सामना न करते, क्योंकि यजीद इमाम हुसैन के खून के प्यासे थे, यजीद तो चाह ही रहा था कि हम जिस मिशन को फॉलो कर रहे हैं, इमाम हुसैन के पास यजीद के तरफ से इस इब्ने ज़ियाद का खुतूतात आ रहा था, पैगाम आ रहा था कि इमाम हुसैन, ए इमाम पाक, आप यजीदी बैयत कबूल कर लें, आप यजीद की बैयत मान लें, आपको बहुत सारे मालो दौलत दिए जाएंगे, आपको बहुत सारे रुपए दिए जाएंगे, बल्कि आपको किसी मुल्क की हुकूमत जो है तो आपके अंडर में दी जाएंगी। लेकिन कुर्बान जाए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन हमेशा इनकार करते रहे कि मैं अपनी जान की कुर्बानी पेश कर सकता हूँ, मैं अपने जान की कुर्बानी दे सकता हूँ, लेकिन मैं नबी का दिया हुआ दीन, अपने नाना का दिया हुआ दीन मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, मैं इस पाक हाथ को तुम्हारे नापाक हाथ में नहीं दे सकता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक के बाद दीगरे सब शहीद हो गए। अब इमाम ने फैसला किया कि अब कोई कहने वाला ना रहा, कोई पुकारने वाला ना रहा, इमाम हमें भी मौका दीजिए, बाबा जान हमें भी इजाज़त दीजिए, हमको भी मौका दीजिए। बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, बीमार है। अब इमाम ने फैसला किया कि मैं ही बचा हूँ, अब मैं जाता हूँ। सैयदा ज़ैनब से इमाम हुसैन ने गुफ्तगू की, बातचीत की, फिर उसके बाद इमाम हुसैन ने लिबादे मुस्तफ़ा पहने, सर पे इमाम मुस्तफ़ा रखे, उसके बाद सैफ़ अली लिए, घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को कहा है घोड़ा चल, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार नहीं है, घोड़ा नहीं जा रहा है। फिर दूसरी मरतबा इमाम हुसैन एड़ी लगाते हैं और अर्ज़ करते हैं घोड़ा चल, घोड़ा नहीं चलता है, पीछे मुड़ करके देखता है,
इमाम हुसैन फिर तीसरी मर्तबा फिर ज़ोर से अर्ज़ करते हैं, घोड़ा तू चलता क्यों नहीं है, तू चलता क्यों नहीं है। लेकिन फिर तीसरी बार घोड़ा पीछे मुड़ करके देखता है। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरते हैं, क्या देख रहे हैं कि सैयदा सकीना घोड़े से लिपटी हुई है। सैयदा सकीना है, घोड़े के टांगों को पकड़ी हुई है, घोड़े के टांगों से लिपटी हुई है और अर्ज़ करते हैं, घोड़ा मेरे बाबा जान को मत ले जा, ए घोड़ा मेरे बाबा जान को मत ले जा। मुसलमानों, अगर आपका ईमान सर्द नहीं हुआ है, आप इमाम हुसैन का दावा करते हैं, आप इमाम हुसैन को अपने आप को इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत के दावेदार हैं, आप कहते हैं इमाम हुसैन के दाई हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो आज इमाम हुसैन ही के नाम पर आप गलत काम करते हुए नज़र आते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप आगे देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, आप अगर 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो आपकी बच्चियाँ, आपके बच्चे आपको कहते बाबा जान आप बाहर ना जाएं, आप कहीं ना जाएं, हम थोड़े पर गुजारा कर लेंगे, हम आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई गुजारिश नहीं करेंगे। लेकिन जाने वाला आने के इरादे से जाता है, जाने के इरादे से नहीं जाता है। लेकिन कुर्बान जाए, इमाम हुसैन आने के इरादे से नहीं जा रहे हैं, इमाम हुसैन जा रहे हैं। सैयदा सकीना को भी मालूम है बाबा नहीं आएंगे, सैयदा ज़ैनब को भी मालूम है बाबा नहीं आएंगे, सैयदा ज़ैनब को भी मालूम है भाई हुसैन नहीं आएंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी मालूम है कि इमाम हुसैन वापस नहीं आएंगे। इमाम हुसैन ने सैयदा सकीना को प्यार किया, मोहब्बत किया, अपनी बहन के हवाले किया और कहा बहन इनका ख्याल रखना। फिर इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं, तलवार चलाते हैं। आप इमाम हुसैन करबला के मैदान में तलवार इस तरीके से चला रहे हैं जैसे बिजली की तरह चमक रही हो, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते हुए चले जा रहे हैं, काटते हुए चले जा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर में आपको बता दूं, वक्त ऐसा भी आता है जो ही इमाम हुसैन के कानों में अजान की आवाज़ें आती है, नमाज का वक्त होता है, इमाम हुसैन अपना सर सजदे में रख देते हैं। वो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, अल मुख्तसर में आपको बता दूं, इमाम हुसैन जैसे ही अपना सर सजदे में रखते हैं, यजीदियों ने सोचा कि अगर फिर ये सर सजदे से उठाया, अगर ये सर सजदे से उठाएंगे तो फिर ये हमें गाजर मूली की तरह काटते हुए चले जाएंगे, लिहाजा अभी मौका है इसको इसी हालत में शहीद कर दिया जाए। अगर इस हालत में इनको शहीद नहीं किया जाए और ये सर अगर उठा लिए तो फिर हमारी जो तो खैर नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन के सर को सजदे में, इमाम हुसैन सजदे में थे और आपके सर को सजदे से यानी सजदे ही की हालत में तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए। अर्श व फर्श पर तहलका बरपा हो गया। सहाबा ताबईन बयान फरमाते हैं कि 7 दिन तक सूरज के बजाय दिन में तारे निकलते और रात में तारे आपस में टकराते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारे टकराते थे, आसमानी निज़ाम सुर्ख आलूद था, आसमान खून से अली इमाम हुसैन की शहादत की वजह से खून आलूद हो गया था, पूरा आसमान सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद उस बदबख्त यजीदियों ने इमाम हुसैन के खेमों को आग लगा दिया, उस दरिंदों ने खेमे में आग लगा दी, खानदान नबूवत के खानवादे के खेमे में आग लगा दी, खेमे में आग लगा दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खानवादे मुस्तफ़ा के चश्मो चिराग को उस यजीदियों ने सुए दमिश्क रवाना कर दिया, सुए दमिश्क रवाना कर दिया। अब मुस्तफ़ा करीम का लटापटा काफिला जिन पर जुल्म ज़्यादती की गई सुए दमिश्क रवा है। सैयदा ज़ैनब उस काफिला को लेकर के चल रही है, जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल मैदान महशर होगा, अर्श से आवाज़ आएंगी, ए महशर वालों अपनी गर्दनें नीची कर लो, अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद जा रही है, फातिमा बिनते मोहम्मद जा रही है। और किताबों में आता है कि फातिमा बिनते मोहम्मद 70,000 हुरों के झुरमुट में जाएंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, या सैयदा फातिमा, आज वो झुकने वाली गर्दनें कहाँ है? आज आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब लटापटा काफिला लेकर सुए दमिश्क रवा है, आज वो झुकने वाली गर्दनें कहाँ है? आज वो झुकने वाली निगाहें कहाँ हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो काफिला चलता जाता है, चलता जाता है,
کافی دور نکل جاتا ہے۔ یزیدیوں نے رات ہو گئی، یزیدیوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، اب کہیں آرام کر لیا جائے، کیونکہ تھکے ماندے تھا۔ کہا کہ رات کا وقت ہے، اب آرام کر لیا جائے تھوڑی دیر، پھر صبح اٹھ کر کے یہاں سے چلیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں نے ایک جگہ تلاش کیا اور اسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے جگہ تلاش لیا۔ اب اسی جگہ پہ رک گیا، سارا قافلہ رک گیا، نڈال قافلہ خانواد مصطفیٰ کے بھی ہے، وہ یزیدی بھی ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک گرجا گھر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس گرجا گھر میں ایک عیسائی راہب جو اپنے مذہب کے اعتبار سے بہت نیک متقی پرہیزگار انسان تھا، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس گرجا گھر میں عبادت کرتا تھا۔ جب اس راہب نے دیکھا کہ کچھ لٹا پٹا قافلہ آیا ہوا ہے، کچھ قافلہ نڈھال ہے جو پڑاؤ کیا ہوا ہے، اس راہب نے باہر نکلا، کیا دیکھا کہ قافلہ ہے، نیزے پر سر ہے۔ اس راہب نے پوچھا یہ کون ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم کا یہ لٹا پٹا قافلہ ہے، مصطفیٰ کریم کے خانوادے کے یہ لوگ ہیں، یہ حسین کا سر ہے۔ جیسے اس پادری نے دیکھا، جیسے اس راہب نے دیکھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس پادری نے بولا، اس عیسائی راہب نے بولا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو۔ اس راہب کو دنیا کے کتوں نے، اس یزیدیوں نے 10,000 میں رد دے دیا۔ جیسے اس راہب نے اس امام حسین کے سر کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، سیدھے گرجا گھر میں گیا، اس کو خوشبو والے پانی سے دھویا، پھر خوشبو سے معطر کیا، کرنے کے بعد پورے رات اس سر کو چومتا رہا، اس سر کو چومتا رہا۔ صبح ہوئی، اس سر کو پھر یزیدیوں کے حوالے کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں کے حوالے کر دیا۔ اب یزیدی وہاں سے چلا گیا، لیکن قربان جائے وارے امام، تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفعتوں کو سلام۔ جب تو زندہ تھا تب بھی اسلام پھیلا رہا تھا، جب تیرا سر تن سے جدا ہو گیا ہے تب بھی تو اسلام پھیلا رہا ہے۔ گویا کہ نبی مکرم نے فرما دیا، اے پادری، اے عیسائی راہب، تم نے میرے نواسے کے سر کی حفاظت کی ہے، تم نے میرے نواسے کی سر کے اکرام کیا ہے، لہذا میں تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہوں۔ اس عیسائی راہب نے کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام حسین ہے، زندہ تھے تب بھی اسلام پھیلا رہے تھے، شہید ہو گئے تب بھی اسلام پھیلا رہے ہیں۔ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر اس سے آگے آئندہ ہفتہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں یا ہمارے سننے میں، ہمارے بیان کرنے میں یا ہمارے بھائی کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی غلطی سے ہو گئی ہو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سب کے دلوں میں امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے ہم سبوں کو محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیں، اور جو حضرات وضو خانے کے پاس کھڑے ہیں ان سے گزارش سے اندر آ کے جگہ لے لیں۔